Hello and welcome to this week's edition of For His Glory. सबको नमस्कार। इस हफ्ते की उनकी महिमा इस कार्यक्रम में स्वागत करते हैं। I left you last week with a picture of Elijah having just restored the altar of God. पिछले हफ्ते हम उस तस्वीर के साथ हमने खत्म किया कि एलिया परमेश्वर के वेदी को फिर से बनाता है। He's allowed the prophets of Baal to try and connect with God in their own way for all of the morning, and now it's finally time for the evening sacrifice. उसने अनुमति दी बाल देवता की सारी भविष्यवक्ताओं को किसी तरीके से वो अपने प्रयास करें कि अपने देवता के साथ जुड़ने के लिए। सवेरे से लेकर वो दोपहर तक अपने कार्य निभाया मगर कुछ नहीं हुआ। अब एलिया का मौका आया है। That whole process that the prophets of Baal went through is a picture of the apostasy and the extent to which it will go at the end of the age. हर एक काम जो बाल देवता की भविष्यवक्ता ने किया है वो सब इस युग की कलीसिया जो विश्वास से पीछे हटने का है उसे दर्शाता है। But now it's Elijah's turn. अब वो एलिया का मौका है। And he teaches the people what a true altar of God is really all about. और वो लोगों को सिखाता है कि परमेश्वर की वेदी सच्चाई से क्या होता है। And after he rebuilds the altar, after he shows them a process of what it means to come to the place of consecration for God. जब उसने वेदी को बनाया फिर से और लोगों को बताता कि क्या होता है कि परमेश्वर के शुद्धिकरण के स्थान में आने से Then Elijah comes before God and prays. बाद में एलिया परमेश्वर के सामने आता है और प्रार्थना करता है। So in 1 Kings chapter 18 verse 36 we'll continue from where we left off from last week. इसलिए पहला राजा 18 अध्याय के 36वें पद से हम जो है आगे जारी रखेंगे जो हम पिछले हफ्ते रुके थे। It came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came near and said, Lord God of Abraham, Isaac, and Israel, let it be known this day that you are God in Israel, and I am your servant, and that I have done all these things at your word. फिर भेंट चढ़ाने के समय एलिया नबी समीप जाकर कहने लगा, हे अब्राहम, इसहाक और इस्राएल के परमेश्वर यहोवा, आज ये प्रकट कर कि इस्राएल में तू ही परमेश्वर है और मैं तेरा दास हूँ और मैंने ये सब काम तुझसे वचन पाकर किए हैं। Now, if you've ever tuned into this program before, you know that I constantly tell people we must know the voice of God and only do what He tells us to do. अगर इस कार्यक्रम को पहले से आप देखते आ रहे हो तो आप जाने होंगे कि मैं लगातार बार यही बताता रहता हूँ कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले बनना है और उसके अनुसार कार्य करना है। This confrontation Elijah had, everything he had done because the Lord spoke to him and said to do it. यहाँ पे एलिया ने जो आमना सामना किया है ये हर काम जो कुछ उसने की परमेश्वर ने उसे कहा है और वैसा ही उसने सुनकर किया है। Now there's a glaring difference between the prophets of Baal who did everything they did according to a false doctrine and a lying voice and the prophet Elijah. एलिया नबी से और बाल की भविष्यवक्ता से थोड़ी सी हल्की सी ये बदलाव यही है कि बाल देवता की भविष्यवक्ता हर एक चीज उन्होंने किया है झूठी शिक्षाओं को सुनकर झूठी शिक्षाओं में से उन्होंने किया है। And so look what Elijah says. He says, number one, let everybody know that you and you alone are God. देखिए यहाँ पर एलिया क्या कहता है। सर्वप्रथम वो कहता है कि प्रभु लोग जानने पाए कि आप मात्र ही यहोवा है। Let them know that I am your servant, and this is how they will know that I am your servant, because I only did what you told me to do. ये लोग जानने पाएं कि मैं तुम्हारे दास हूँ। वो कैसे जानने पाएं कि मैं तुम्हारे दास हूँ? क्योंकि जो कुछ मैंने किया है मैं तुमसे सुनकर और तुमसे पाकर ही किया हूँ। There's a pattern for your life. Recognize He's God. Cry out for that heart of a servant. And only do what He tells you to do. आपके जीवन के लिए एक तरीका और नमूना है कि आप परमेश्वर को पहचानें और परमेश्वर की ओर पुकारें कि क्या करना है और वो जो कहता है उसे सुनकर वैसे कार्य करें। Verse 37 shows you why he prayed this way. He said, Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that you have turned their hearts back to you again.
37वें पद बताता है कि वो किस लिए ऐसे प्रार्थना किया कि हे यहोवा मेरी सुन कि लोग जान ले कि हे यहोवा तू ही परमेश्वर है और तू ही उनका मन लौटा ले आता है। In the Gospel of John, Jesus states that he sanctified himself for the sake of his disciples. यूहन्ना के सुसमाचार में इस प्रकार कहता है कि यीशु मसीह ने अपने आप को पवित्र किया अपने चेलों के निमित्त। We see the same example here with Elijah, who said, Lord, I've done all of this so that the people may know you are God. वैसा ही हम एलिया के जीवन में देखते हैं, वो कहता है कि मैं ये सब चीज इसीलिए किया हूं ताकि लोग जान सकें कि तू ही यहोवा है। But I keep hearing this in my spirit. I've got to reiterate this. There are too many that think they're hearing God and doing what they want to do, and when God doesn't answer, they blame God. मुझे ऐसे लग रहा है कि इसे बताना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि उन्हें लगता है कि वो परमेश्वर से सुनकर करते हैं, कि वो सोचते हैं कि परमेश्वर जिसने कहा है करने के लिए उसी को मैं कर रहा हूँ। Develop a sensitivity to the voice of God. परमेश्वर की आवाज के लिए आप संजीदा होने के लिए अपने आप को आगे बढ़ाइए। How do we do that? You spend time in prayer, praying in the Holy Spirit. Number 2, you spend time sitting and listening to the voice of God. You sit and listen. Do nothing else but listen for his voice. ये कैसे कर पाएंगे? पहले आप बैठ के प्रार्थना करिए, अन्य भाषा में आत्मा में प्रार्थना करिए, और दूसरा आप बैठ के सुनिए, क्योंकि सुनने से ही आप पहचानने लगेंगे। सुनना जरूरी है। Here's a key for you in the book of Habakkuk. हबाकुक की पुस्तक में आपके लिए कुंजी है। After Habakkuk had poured out his heart in complaint towards the Lord, he said this, I will stand my watch and listen to see what the Lord says to me. हबक्कुक अपनी सारी शिकायत को परमेश्वर से कहने के बाद कहता है कि मैं स्थिर खड़े होकर देखूंगा और मैं सुनूंगा कि आप क्या कहने चाह रहे हैं। Most of the time the Lord speaks to you in pictures. बहुत से बार परमेश्वर तस्वीरों के द्वारा आपसे बात करते हैं। You just have to be aware of what's going on. Get a journal and write down what you see. And as you do so, you will understand what God is saying to you. कई बार हमें समझ नहीं आता कि परमेश्वर किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, इसीलिए आप क्या करें, एक पुस्तक ले लें, जो कुछ परमेश्वर कहते आता है उसे लिख लें और उसमें मनन करके ध्यान देने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। Now after he had prayed, verse 38 says, Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt sacrifice and the wood and the stones and the dust. And it licked up the water that was in the trench. प्रार्थना के बाद उसके उत्तर मिलता है। 38वें पद में पढ़ते हैं, तब यहोवा की आग आकाश से प्रकट हुई और इस होम बलि को लकड़ी और पत्थरों और धूलि समेत भस्म कर दिया और गड्ढे में का जल भी सुखा दिया। Now it wouldn't be a surprise that the fire would burn the wood and the sacrifice. क्या यह आश्चर्यजनक नहीं होगा कि आग ने जो है बलिदान को और उस सारे लकड़ियों को जलाकर राख कर दिया है? But it also consumed the stones, the dust and the water. साथ ही साथ पत्थर और मिट्टी और वहाँ के पानी को भी। Let me give you a prophetic picture. मैं एक भविष्यवाणी रूप के एक चित्र देना चाहता हूँ। We offer unto God many times certain things in our life. हमारे जीवन में कई ऐसे बात होते हैं जिसमें हम प्रभु के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। We may put onto the altar of sacrifice our thoughts or our sins or our failures. हम अपने परमेश्वर के वेदी के ऊपर अपने विचारों को, अपने हार को, अपनी सारी सोच को हम डाल सकते हैं। Some of us may even go so far as to put on that altar of sacrifice our successes and our wants and dreams and hopes and desires. कुछ लोग और आगे बढ़ के उस वेदी के ऊपर अपने बलिदान, जैसे कि अपनी चाहत हो, अपने सपने हो या अपने लक्ष्य, उन सबको अपने आप को डाल देते हैं। Remember in Genesis that God created man from the dust of the earth? क्या आपको याद है कि परमेश्वर ने उत्पत्ति की पुस्तक में मनुष्य को धूल से बनाया है? Also recall that Scripture declares that our God is a consuming fire. और ऐसे लिखा हुआ भी है कि परमेश्वर के वचन में परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। Let's look again at what happened. फिर से देखें कि वहाँ पे क्या हुआ। The Lord received the burnt sacrifice and the wood. परमेश्वर ने होम बलि और उस लकड़ी को स्वीकार कर लिया। But then he consumed the stones and the dust and the water. बाद में परमेश्वर वहाँ के पत्थर, धूल और पानी को भी भस्म कर दिया। Man is made out of the dust of the earth. We're talking about his flesh. मनुष्य मिट्टी से बनाया गया, जो उसके शरीर के विषय में बात करता है। Sometimes that dust is like our heart. It becomes hardened. So we have a picture of the stone, the hardness being consumed.
कुछ समय ये धूल बहुत ही सख्त हो जाता है, जो इस हृदय के विषय में बात करता है, जो पत्थर समान हो जाता है। इसलिए यहाँ पर पत्थर भी भस्म हो गया। Now, the water is interesting because it has a number of meanings. यहाँ पे पानी बहुत ही दिलचस्प है क्योंकि बहुत सारे उसकी मतलब है। It can speak of the Word of God, it can speak of the Spirit of God, or it can speak of the human body too, which is made up of 78% water. ये परमेश्वर के वचन के विषय में बोल सकता है, या परमेश्वर की आत्मा के विषय में बोल सकता है, यहाँ तक कि मनुष्य के शरीर के विषय में, क्योंकि मनुष्य के शरीर में 70% पानी है। In all of these terms, in all of these pictures, we see a picture of the Lord who is a consuming fire, cleansing his people one more time. इन सारे तस्वीर में हम देखने पाते हैं यहोवा ऐसे भस्म करने वाले आग है, वो जो परमेश्वर के लोगों को शुद्धिकरण में ले जा रहा है। False doctrine is consumed, hardness of heart is consumed, fleshly works and endeavors is consumed, and the people of God are called back to holiness and to purity and the fear of the Lord. झूठी शिक्षाएं भस्म हो जाती है, हृदय की सख्तता भस्म हो जाती है, शारीरिक कार्य भस्म हो जाता है, परमेश्वर के लोगों को फिर से पवित्रता की ओर, शुद्धिकरण की ओर बुलावा देता है। So shall it be now at the end of the age. God's consuming fire presence will come and purify for himself a people. इन अंतिम दिनों में ये सही होने पाए कि परमेश्वर की भस्म करने वाली आग लोगों के ऊपर उतरे और उनको संपूर्ण रीति से परमेश्वर के लिए शुद्ध करने पाए। Verse 39 says, when all the people saw it, they fell on their faces and they said, the Lord, he is God, the Lord, he is God. 39वें पद कहता है, ये देख सब लोग मुंह के बल गिर के बोल उठे, यहोवा ही परमेश्वर है, यहोवा ही परमेश्वर है। Through this visitation of God's glory, because Mount Carmel is the place of God's glory, the remainder of the flesh in their lives, the evil, the wickedness was consumed, and they recognized God truly for who he was. यहाँ पर जब परमेश्वर की महिमा की मुलाकात होती है, क्योंकि करमल पर्वत परमेश्वर की महिमा कहलाता है, तो शरीर की सारे बातें, जो भी सारी झूठी बातें सब भस्म हो जाती है। उसे देखकर सब अंगीकार करने लगते हैं, मान लेते कि यहोवा ही परमेश्वर है। Verse 40, and Elijah said to them, seize the prophets of Baal, do not let one of them escape. 40वें पद, एलिया ने उनसे कहा, बाल के नबियों को पकड़ लो, उनमें से एक भी छूट ना पाए। At this place of revelation and consecration, the Lord says, I want you to grab those false doctrines, grab those false things in your life. Don't let them escape because it's time to destroy their influence in your life. जब इन अंतिम दिनों के परमेश्वर की प्रकाशन आता है, तो परमेश्वर कहता है कि हम सब उस सारे झूठी शिक्षाओं को, हर एक भरमाने वाली बातों को पकड़ लें, क्योंकि ये बातें जो आपको आगे से ना देने पाए, तो इसे हमें नाश करना है। So they seized them, and Elijah took them down by the brook Kishon, and he slew them or executed them there. और वहाँ पर उन सबको पकड़कर वहाँ से नदी के तट पे ले जाकर उन सबको मार डालता है। Just recently I had an encounter with the Lord where he showed me that he is releasing right now in the earth angels to harvest the tares and remove them from amongst the wheat. परमेश्वर ने हाल ही में मुझे एक दर्शन दिया है कि वो अपने स्वर्गदूतों का ऐसे भेज रहा है इन दिनों में, ताकि वो जाके वैसे सारे लोगों को उन्हें छटाई करे, उन्हें नाश करने पाए, ताकि लोगों के गेहूं के बीच में कांटे ना होने पाए। Where I live in the United States, we are among many wheat fields, so we know the difference between wheat and tares. हम संयुक्त राष्ट्र में रहते हैं, जहाँ पर कई प्रकार के गेहूं की खेत है, तो इसलिए हम जानते हैं गेहूं और कांटे के जाड़े के बीच में। When they grow together, you can't tell them apart. They look almost alike. जब वो एक साथ बढ़ते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, क्योंकि वो एक समान दिखाई देते हैं। But as harvest time comes near, the wheat that now becomes laden with seed and is mature bows down. और यहाँ पर देखने पाते जब फसल कटने के समय आता है, तो उसका बीज इतना तक बढ़ जाता, भारी होकर झुकने लगता है। That speaks of humility. That speaks of worship of God. और वो परमेश्वर की नम्रता को दिखाता है और आराधना को दिखाता है। But the tares don't bow down. They stand straight up. मगर वो कांटों की झाड़ी वो झुकते नहीं, वो सीधा खड़े रहते हैं। That speaks of pride and arrogance, a haughty spirit. और वो घमंड और उस प्रकार के विरोध की बातों को बताता है, जो परमेश्वर के विरोध में घमंड करता है। And so just before you harvest the wheat, they harvest the tares. इसलिए गेहूं की फसल काटने से पहले वो उस कांटीले जड़ों को काट के निकालते हैं।
And so in this visitation, I saw the Lord command his angels to go harvest the tares of the earth. और इस वजह से दर्शन में प्रभु ने मुझे दिखाया कि जाके उन सारे कटीले झाड़ियों की कटनी करके ले आए कि परमेश्वर के प्रकाशन आने से पहले। There is going to be much exposure taking place in the world and in the church of those things that are not of God. बहुत सारे ऐसे दिखावा होने वाला है कि जो बातें कलीसिया में संसार में हैं जो परमेश्वर की ओर से नहीं है वो दिखाई देगा। That should cause us to walk with fear and trembling. That's reverence and awe and respect for God, because that means the wheat harvest, the final great ingathering, is almost upon us. वो हमें ये दर्शाता है कि परमेश्वर के प्रति भय के साथ आदर के साथ चलें, क्योंकि ये दिखाता है कि परमेश्वर की अंतिम कटनी का समय आ चुका है। How long will this process of removing the tares take? I don't know. कितना लंबा समय तक ये कटीले झाड़ी की कटनी होगा वो मैं नहीं जानता हूँ। But I do know it's in process now, as we've witnessed throughout the earth in this hour. मगर मैं ये कह सकता हूँ उसकी प्रक्रिया अभी चालू हो सकती है, क्योंकि सारे संसार भर में हम देख रहे हैं उसके असर। And knowing this, then, what should be our response? इसे जानने के बाद हमारे प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए? I believe that knowing this, we should be a people that chooses to press into the kingdom of heaven like never before through prayer and fasting and reading of the word. इसे जानने के बाद हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हमें ज्यादातर परमेश्वर की उपस्थिति में, प्रार्थना में, उपवास में जाना है, जिससे कि हम परमेश्वर को जानने लग जाएं। It's time for us to draw near to God because he wants to draw near to you. ये समय है कि हम परमेश्वर के करीब आएं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि वो हमारे करीब आएं। Verse 41, it said, Elijah said to Ahab, "Go up and eat and drink, for there is the sound of the abundance of rain." 41वें पद, फिर एलिय्याह ने आहाब से कहा, उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। In other words, the world's going to continue on just like in the days of Noah, eating and drinking and carrying on. दूसरे शब्दों में संसार वैसा ही कार्य करते रहेगा जैसे नूह के समय पर था। लोग खाते पीते लेते देते रहते हैं। But after God awakens his people and causes them to come back to purity, holiness, and the fear of the Lord, there's the sound of the abundance of rain. जब परमेश्वर के लोगों को अपने मन फिराव की ओर ले आता है, जागृति में ले आता है, तब यहाँ पर वो बहुतायत की, वो बरसात की सनसनाहट सुनाई देता है। At first, only the prophets of God will hear it. पहला सिर्फ परमेश्वर के भविष्यवक्ता लोग उसे सुनेंगे। But very soon it will become evident to all. It's the last great move of God, the great awakening. जल्द ही सब लोगों के लिए वो सबूत बन जाएगा, क्योंकि एक बड़े जो है जागृत का, एक बड़े बेदारी का समय होने पाएगा। And so Ahab goes up to eat and to drink, but Elijah went to the top of Mount Carmel and he bowed to the ground and he put his face between his knees and he said to his servant, "Go now, look toward the sea." तब आहाब खाने पीने चला गया और एलिय्याह करमेल की चोटी पर चढ़ गया और भूमि पर गिरकर अपने मुंह घुटने के बीच में किया, और उसने अपने सेवक से कहा, चढ़कर समुद्र की ओर दृष्टि करके देख। तब उसने चढ़कर देखा और लौटकर कहा, कुछ नहीं दिखता। एलिय्याह ने कहा, फिर 7 बार जा। He knew there was something coming prophetically because the Lord showed him. He hears the sound in the spirit of a great awakening, a revival. उसे मालूम है कि कुछ होने वाला है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे दिखाया है और वो कुछ सुनने पा रहा है कि बड़े कार्य एक होने पर है। So he goes to the top of Mount Carmel, and Scripture says he put his head between his knees. In the Hebraic understanding, that's a position or a posture of reverence and worship. करमेल चोटी के ऊपर वो चढ़ जाता है। वो वचन कहता है कि वो अपने सिर को घुटने के बीच में रखा है। इब्रानी संस्कृति के अनुसार वो एक आदर करने की एक प्रक्रिया है, तरीका है। Then he sends his servant to look towards the sea. The seas speak of the nations. तब वो अपने सेवक को भेजता है कि समुद्र की ओर देखें। समुद्र परमेश्वर के लोगों को, ये राष्ट्र को दर्शाता है। Now we are in that moment where we should be looking across the nations to see if there is not an outbreak of the Spirit of God, the latter rain. वो हमें इन अंतिम दिनों के बारे में दर्शाता है कि हम जाके राष्ट्रों की ओर ध्यान दें कि क्या कुछ ऐसे परमेश्वर के कार्य आता हम क्या देख पाते हैं। I have been paying attention to reports and stories of outbreaks of the move of God throughout the nations even today. और आज के दिन तक मैं ध्यान देता रहता हूँ, खबरों में सुनता रहता हूँ कि क्या कोई ऐसी बात है या कोई बेदारी आने वाला है। Right now it's a little bit here and a little bit there. It's a
small beginning, but God's about to explode throughout the nations. अब वो इधर छोटी सी बात और उधर छोटी सी बात, ये सिर्फ एक छोटी सी शुरुआत है, मगर परमेश्वर एक बड़े विस्फोटक का कार्य करने वाला है, एक बड़े बेदारी को लाने वाले हैं। 7 times he went up and looked and there was nothing. But on the 7th time, he saw a cloud the size of a fist. On this 7th day from Adam, we're about to see an outpouring of God like the world has never seen. 7 बार उसने जाके देखा, कुछ नहीं दिखा, मगर 7वें बार देखते ही मुट्ठी भर के एक बादल देखा है। आदम से लेकर अब जो 7वें दिन की जो पीढ़ी है, एक बड़े ऐसे बरसात को देखने वाली है जो बेदारी का अब तक इतिहास ने कभी नहीं देखा है। We must prepare our hearts for the coming of the Lord draws near. हम सब अपने हृदय को तैयार करना है कि परमेश्वर के आने के दिन निकट हो चुका है। Remember this week and every week of your life to do all things for His glory. इस हफ्ते और हर हफ्ते अपने जीवन में ये याद रखिए कि हर जो काम करें उनकी महिमा के लिए करें। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedback to Angel Television, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टेलीविजन, विलीवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।